all the student of the BSc first year classes. We will discuss today to the process of the glycolysis. That is the one of the new topics in the cell biology, because the glycolysis is the glucose metabolism. That is related to the Krebs cycle, because that is the Krebs cycle is followed on the basis of the formation of the acetyl coenzyme, and the acetyl coenzyme which are formed to the pyruvic acid, and the pyruvic acid is breakdown from the glucose, so that to the one glucose is directly breakdown into the 2 moles of the pyruvic acid, and that's the pyruvic acid is undergoing to the reactions, oxidative decarboxylation, formation of the acetyl coenzyme, and that's to the acetyl coenzyme goes into the mitochondria and perform to the Krebs cycle. So today's topic is related to the mitochondria, because the mitochondria is the powerhouse of the cell. In the previous lecture I was discussed about into the well-mannered, and I hope you are to understand about to the their structure and their function. That is the function of the mitochondria. In the function of the mitochondria, that is the Krebs cycle particularly, but here to the for the convenient study, that is the today's will start to the what is the glycolysis. On the basis of the glycolysis, you better understand about to the ATP generation, oxidative decarboxylation, oxidative phosphorylation, and all the chemical reactions which are named during to the glycolysis and the Krebs cycle, along with the decarboxylation process as well, and after that to the electron transport system. So that we start now to the glycolysis process. Glycolysis or the EMP pathway, Embden-Meyerhoff-Parnas pathway, Embden-Meyerhoff-Parnas pathways. There are the 3 scientists. There are 3 the person which are collectively describe, collectively give to the what is the procedure which are going during to the breakdown after the glucose into the pyruvic acid, and what is the name of the pyruvic acid, glycolysis. या आज मैं BSc फर्स्ट ईयर क्लासेस के अंतर्गत जो पिछले लेक्चर में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आपको एज ऑर्गेनेल्स टीच किया था, उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया. उसके बाद आज मैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक बेसिक फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है, तो क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें जो है ग्लाइकोलिसिस को भी समझना पड़ेगा. तो ग्लाइकोलिसिस इसलिए कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है उसी के बिहाव पे डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होगी, जिसमें एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और वही एसिटिल कोएंजाइम फिर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके वहाँ पर क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करेगा, सिट्रिक एसिड को बनाएगा या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा. तो वहाँ पे हम देखेंगे. तो हम ग्लाइकोलिसिस के बिहाफ पे तो ग्लूकोज, ये सारे क्या हैं, ग्लाइकोलिसिस हो, क्रेब्स साइकिल हो या फिर आपका डिकार्बोक्सिलेशन हो, ये सारी प्रक्रियाएं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होती हैं, ग्लूकोज से टूट के बनती हैं. क्योंकि आप यू आर बेस्ट नोन अबाउट टू द हु इज द विच काइंड्स ऑफ द मटेरियल दैट इज द इंडिकेटिंग फॉर दैट टू द एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज द carbohydrate and lipid. The both of the things, both of the materials, both of the substances is very important for the energy production, in which to the glucose is in going into the rapid or the very fast into the solubility, and then give to the into the at once energy. So here तो हमने यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया की और हमने लिखा है EMP पाथवेज.
इम्डेन, मेयरहॉफ, पार्नस पाथवे, 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको जो है खोज की, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया की, इसलिए इसको इम्डेन, मेयरहॉफ, पार्नस पाथवे बोलते हैं। हम यहाँ पे सक्सेसिव टर्म में, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे 1 बाई 1 करके आपको बताते चलेंगे और एक एक स्टेप के हिसाब से आप समझते चलिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या है। पहले हम समझते हैं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया, जैसा मैंने बताया, एज यू मेंशन दैट द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन विच टू द 1 ग्लूकोज molecule which break down, degrade into the 2 mole of the pyruvic acid, and that's to the formation of the energy and the loss of the energy as well, and a lot of the numbers of the enzymes which are also used in this process. But the process, how is the process which are going on to the glycolysis, how numbers of the steps which are involved in the completion, for the completion and that to the form to the pyruvic acid. तो कितने स्टेप्स इसमें शामिल होते हैं, कितने स्टेप होते हैं जो कि पायरुविक एसिड को बनाने के लिए होते हैं, तो हम देखते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो 9 स्टेप पे पूरी होती है। दे आर द 9 विच आर हैव टू द 9 स्टेप्स इन विच 9 स्टेप्स टू द 9 स्टेप्स इन विच 1 to 4 steps is preparatory phase, and second is 5 to 9 is the oxidative phase. यहाँ पे 9 स्टेप में पूरी होती है, और 9 स्टेप को अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे तो वो 1 से लेके 4 तक प्रिपरेटरी फेज आता है, और 5 से लेके 9 फेज जो है ऑक्सीडेटिव फेज होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक हर एक जो रिएक्शन होगा, हर एक स्टेप में एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज होगा जो कि डिग्रेड करेगा, जो तोड़ेगा, जो स्टिमुलेशन की प्रक्रिया करेगा, और एक जो है सबस्टांस दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ में साइमल्टेनियस प्रोसेस में यहाँ पे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स दोनों का यूज होगा। यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स भी होंगे, जिसको जैसे हम NAD की बात करते हैं, FAD की बात करते हैं, GTP की बात करेंगे। जैसे NAD की बात की हमने, NAD या NAD प्लस बोलते हैं हम लोग, NAD प्लस या NADP, तो इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार देखिए GDP भी होता है, GDP, GTP, ठीक है। उस प्रकार से फिर हम देखते हैं FAD होता है। तो आप देखें ये कुछ ऐसे जो कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह यूज होते हैं। हाइड्रोजन को रिसीव करके पर्टिकुलर प्रकार के सबस्टांसेस का फॉर्मेशन करेंगे और एनर्जी को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं ये होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ग्वानिन डाइफास्फेट, ग्वानिन ट्राइफास्फेट, या फिर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार के बहुत सारे हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स ये कोएंजाइम के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कोएंजाइम की श्रेणी में भी रखे जाते हैं। दैट इज द प्लेसिंग इनटू द कोएंजाइम एंड दैट्स टू द पार्टिसिपेट as a hydrogen acceptor for that to the evolved energy or the production of the energy, so that in this process of the glycolysis and after that to the Krebs cycle, these are the hydrogen receptors are used and that's to the help into the production of the energy. तो इस प्रकार से इस स्टेप में हम देखेंगे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। यहाँ पे जो पहले से लेके चौथा फेज होता है वो होता है आपका जहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। तो ऑक्सीडेटिव जो फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया यहाँ पे होगी, वहाँ पे एनर्जी खर्च होगी, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगी वहाँ से वो टूटेंगी और एनर्जी को रिलीज कर देंगे।
और जबकि दूसरे 5 to 9 फेजेज में देखिए यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेटिव फेज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी और ऑक्सीडेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब हायर बॉन्ड्स जो एनर्जी होगी यहाँ पे रिलीज होगी, फॉर्म होगी, तो हायर बॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पे बनेगी, तो वहाँ पे जो बॉन्ड्स का निर्माण होगा और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो इस स्टेप को हम देखते हैं, लगातार स्टेप में चलते हैं और लगातार देखते हैं कि इस 9 स्टेप में क्या क्या गतिविधि, क्या क्या केमिकल परिवर्तन होते रहते हैं और उस परिवर्तन के माध्यम से हम ग्लाइकोलिसिस, पूरी ग्लाइकोलिसिस को समझते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में जो पहला स्टेप है विच आर टेकिंग अबाउट टू द ग्लूकोज जो कि हेक्सोज है। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का भी चरण होता है, स्टेप्स होता है, उसमें भी क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड है, डाई ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। तो ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, सिंपलेस्ट वन है, हेक्सोज है, 6 कार्बन इसमें जुड़े हैं और 6 कार्बन से मिलकर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको क्या करना है, डिग्रेड करना है, ब्रेक डाउन करना है। ये क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है और कैटाबोलिक प्रोसेस में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, टूटती है तो एनर्जी। लेकिन ये क्या है, अभी तो मैंने जैसा पहले बताया, वी आर जस्ट मेंशन दैट इनटू द first to fourth step is the preparatory phase, and that means as you just suppose to the any kinds of the events which are going into the organization, and that's to the have to the a lot of money which are expending. So as is same in the process of the glycolysis, 1 to 4 steps is the preparatory, and in the formation of the preparation for the oxidation, that is the utilization of the energy and the expendation of the energy, spent to the energy, breakdown। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होना है, डिग्रेड होना है, डिग्रेड होना चाहिए। तो डिग्रेड होने के लिए पहला स्टेप जो होगा, इसका पहला स्टेप होता है फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन, तो फास्फोरिलेशन का मतलब ये यहाँ पे फास्फोरिलेशन फर्स्ट 2 बार होगा। तो फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया, फास्फोरिलेशन फर्स्ट। तो फास्फोरिलेशन में आप देखें, फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले ग्लूकोज, वी आर टेक्स्ट टू अबाउट द ग्लूकोज एंड द ग्लूकोज। अब क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक फास्फेट ग्रुप को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और उसी को हम इस प्रकार से दिखाएंगे, ATP that goes to the ADP। अब आप कहेंगे ATP, हमने क्या किया, मैंने कहा कि ये प्रिपरेटरी फेज है, यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन होगा, एनर्जी का यूज होगा, एनर्जी यहाँ पे खर्च होगी और एनर्जी खर्च होगी। तो देखिए यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एक जो है फास्फेट ग्रुप इसमें ग्लूकोज के साथ में चला ऐड हो गया और ये कन्वर्ट हो गया ADP में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो ये फास्फेट ग्रुप जो होता है, ये ग्लूकोज का जब आप केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे ये इसके 6 नंबर वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाता है। तो ये इसका कन्वर्जन जो हो जाएगा ग्लूकोज -6 फास्फेट, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब मैंने जैसा बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, खासकर ग्लाइकोलिसिस जैसी प्रक्रियाओं में, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रकार की एंजाइम होगी। क्योंकि क्या है, ये हेक्सोज है तो इसलिए यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम का यूज किया जाता है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट होने के लिए दूसरे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, तो आइसोमेराइजेशन में क्या होगा, आइसोमेरिज्म मतलब कि आइसोमर्स बनेंगे और आइसोमर्स की प्रक्रिया में कोई एटीपी का कंजप्शन नहीं होता। तो ये अब ग्लूकोज का क्या आइसोमर्स है, वो फ्रक्टोज होता है। तो ये कन्वर्ट होके फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, आइसोमेराइजेशन प्रोसेस में है, आइसोमेरिज की प्रक्रिया होगी और आइसोमेरिज की प्रक्रिया में आप जानते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं, वहाँ पे हमें नहीं जाना। हमें इस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से बस इतना बताना है कि वो आइसोमेरिज में है। तो ग्लूकोज का जब आप जैसे आप वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, तो अगर आप शीशे के सामने खड़े होइए तो आपके जो है जैसा एज लुक लाइक एज, तो लेकिन वो क्या होगा, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट जो है स्पेसिस पे होगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो ग्लूकोज
का जो आइसोमर होता है वो फ्रक्टोज होता है, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट को हमने रिप्रेजेंट किया। अब एक पर्टिकुलर प्रकार का एंजाइम होगा, तो अब एंजाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप देखें, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे फास्फेट है तो हमने लिख दिया फास्फो, यहाँ पे ग्लूकोज है तो ग्लूको, फास्फो ग्लूको। अब कौन सी प्रक्रिया हो रही है? आइसोमेरेज, फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज। देखिए ये प्रक्रिया हो गई। तो ये एंजाइम, इस एंजाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज इज ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं तीसरे, एक बार फास्फोरिलेशन की फिर से प्रक्रिया होगी, वंस अगेन टू द डन बाय फास्फोरिलेशन प्रोसेस, एक बार फिर से होगा, सेकेंड बोलते हैं। अब एक बार फिर से एनर्जी खर्च होगी, मतलब फ्रक्टोज 6 फास्फेट में यहाँ पर आप एक बार फिर से फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, मतलब एक एटीपी का फिर से क्या होगा? यूज होगा, और एटीपी फिर से इसके एक तो पहले से जुड़ चुकी है, आप ऑलरेडी विच आर ऐड टू द फास्फेट इनटू द 6th नंबर एटम ऑफ द कार्बन एंड टू द वंस अगेन टू द ज्वाइन टू द एटीपी दैट इज द 1 फास्फेट इज सेकेंडली टू द 1 कार्बन एटम। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रक्टोज, जैसे ही जुड़ेगा। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 कॉमा लगाएंगे, 6 नंबर मतलब पहले नंबर और छठे नंबर, फिर क्या करेंगे डाई 2 हो गए डाई फास्फेट। तो देखिए आप इस प्रकार से क्या बन गया, तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फास्फेट से वो फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। मैंने कैसे बताया यहाँ पे, तो एक एटीपी ये है, यहाँ पे सिंगल एटीपी है, यहाँ पे दूसरी एटीपी है, तो एक एटीपी यहाँ, एक एटीपी यहाँ पे खर्च हो गई, इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन, that is the how many numbers of the ATP are used in the process, that is the 2 ATP is consumed, that is going on। अब हम चौथे स्टेप में चलते हैं जो कि प्रिपरेटरी फेज का लास्ट स्टेप है, क्लीवेज बोलते हैं। अब यहाँ से हम प्रिपरेशन कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन सा होगा, कैसा होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट अब क्लीवेज प्रोसेस में जाएगा। तो क्लीवेज में ये क्या है, हेक्सोज है, मतलब 6 कार्बन से बना है, तो ये 6 कार्बन टूटेगा। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम एल्डोलेज एंजाइम का यूज होगा, मतलब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एल्डोलेज एंजाइम उपस्थित होगा और ये टूट जाएगा। अब बनेगा क्या, ट्राइओज में कन्वर्ट होगा, तो फास्फो ट्राइओ, यहाँ पे एक एंजाइम फिर से यूज होगा, तो इस एंजाइम को बोलते हैं, यहाँ पे एंजाइम लगा, अब एल्डोलेज एंजाइम, तो ये टूटेगा क्या, ये फ्रक्टोज 6 अब मॉलिक्यूल का बना है, यहाँ पे 2 फास्फेट है, तो ये एक फास्फेट यहाँ पे भी चला जाएगा, एक फास्फेट यहाँ। तो पहला होगा पहला जो स्टेप्स है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, एक बनेगा फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दो इस तरीके से यहाँ पे क्लीव किया गया, 6 कार्बन है, दैट इज द 6 कार्बन ऑफ द फ्रक्टोज विच आर बाइफर्केटेड डिवाइडेड इनटू द फास्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड अनदर वन इज द डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये अब देखें, ये यहाँ पे ये आइसोमेरिज्म के रूप में है। अगर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से हम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को बना सकते हैं और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से हम फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से बनाते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का यूज नहीं होता, हम हमेशा फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का यूज करते हैं। और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है अब ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में जाएगा, तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ये जाता है। तो अब यहाँ से 5वां स्टेप स्टार्ट होगा और 5वें स्टेप में अब देखेंगे हम, तो देखें इसका यूज हम करते हैं। अब देखें क्या होगा 5वें स्टेप में, क्या बोलेंगे उसको। 5वें स्टेप जो होता है वो फास्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन होता है। क्या होता है 5वें स्टेप में
5वें स्टेप में क्या होगा? फास्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन, फास्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन, जिनेशन मतलब दो प्रक्रियाएं साइमल्टेनियस चलेंगी, तो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया होगी। आप देखिए H3PO4 ये इनऑर्गेनिक फास्फेट कहलाता है। देखिए हमने ऐड कर दिया इस एरो के माध्यम से, यहाँ पे हमने इसको ऐड किया। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को क्या करना है? डिवाइड करना है, तोड़ना है। और तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एंजाइम को देंगे, तो जो एंजाइम का नाम होगा वो होगा ट्राइयोज डिहाइड्रोजिनेज। देखें कैसे ये फास्फेट है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है 3 कार्बन का हो चुका है, मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो यहाँ से ट्राइयोज जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये ट्राइयोज एंजाइम है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए यूज किया गया। प्रोसेस कौन सा आ रहा है? डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है वहां से हाइड्रोजन, उस रिएक्शन से, उस कंपाउंड से हाइड्रोजन क्या करेगा? लॉस होगा, वहां से निकलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ये जो कुछ हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स वहां पे रहते हैं जो कि हाइड्रोजन को उस सिस्टम में रिसीव कर लेते हैं, और रिसीव करने से क्या हो जाता है? वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं NAD+, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो पाउड है, ये क्या करेगा? यहाँ से देखिए H3PO4 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। अब देखिए एक फास्फेट ग्रुप है, ये फास्फेट ग्रुप आप देखिए फास्फोरिलेशन, इसके साथ साथ में फास्फोरिलेशन की भी प्रक्रिया हो रही है। तो पहले तो यहाँ से NADH+H+ भी लिख सकते हैं, या आप NADH2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ से, तो हमने जैसा बताया था, यहाँ से आप या फिर समझ लीजिए ये NAD 3 ATP का जनरेशन करता है, एक NADP से 3 ATP का जनरेशन होता है, FAD से 2 ATP का जनरेशन होता है, और GTP से 1 ATP का जनरेशन होता है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम आपको बता दें ये 2 मोल है, 2 मोल है, तो यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये मैंने 2 मोल है, तो 2 अब कितने ATP बना रहा है? एक NAD से 3, तो 6 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको फास्फोरिलेशन की भी प्रक्रिया बता दी, डिहाइड्रोजिनेशन की भी प्रक्रिया बता दी, और एंजाइम कौन सा यूज होता है। अब हमको बताने इससे बनेगा क्या। अब इस फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से सबसे पहले फॉर्मेशन होगा। अब चूंकि यहाँ पे एक फास्फेट था, एक दूसरा फास्फेट फिर से जुड़ रहा है, तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना? 1,3। देखिए तीसरे नंबर कार्बन पे पहले से एक फास्फेट था, एक फास्फेट और जाके जुड़ा, तो 1,3 हो गया। तो अब फास्फेट की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, तो वो डाइफॉस्फेट हो गया, और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड था वो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे इस NAD की मदद से 6 ATP का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे फास्फोर। तो हमने जो प्रक्रिया कही थी फास्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन, दोनों की प्रक्रिया हो गई। हम चलते हैं अब 6ठे स्टेप में। तो 6ठे स्टेप में क्या होगा? 6ठे स्टेप को देखते हैं। अब 6ठे स्टेप को बोलते हैं, हम इसकी यहाँ पे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ATP जनरेशन में जाएगा। एक प्रोसेस है ATP जनरेशन का, मतलब ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब ATP के फॉर्मेशन में कौन सा स्टेप है? 6ठा स्टेप। ये देखिए एरो मैंने लगाया, इस एरो को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एरो के माध्यम से अब क्या फॉर्मेशन होगा? अब यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखें, अब यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं हम यहीं पर कि ATP का फॉर्मेशन होगा, तो निश्चित रूप से ATP यहाँ से क्या होगी? यहाँ से
ये P का रिप्रेजेंटेशन फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट निकल रहा है, और जबकि ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। तो यहाँ 1 फास्फेट है, यहाँ से एक फास्फेट लॉस हो रहा है, एक फास्फेट जाके ADP से जुड़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में सारी प्रक्रियाएं, सारी मटेरियल, सारे जो सबस्टांसेज होते हैं उपस्थित होते हैं। जिस चीज़ की जिस जरूरत नीड की वहाँ पे आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। तो फास्फेट ग्रुप यहाँ ADP से जुड़ा, एक ATP का फॉर्मेशन हो गया। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ATP होता है, तो यहाँ पे तो 2 ATP है, तो यहाँ पे एक ATP या मतलब 2 ATP बना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक ATP, तो यहाँ पे 2 की संख्या होती है, 2 की, तो 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बनेगा क्या प्रोडक्ट, अब यहाँ पे आपको समझना है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो एक फास्फेट ग्रुप को लॉस कर रहा है। एक फास्फेट ग्रुप को लॉस करके ये यहाँ पे एंजाइम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पे होगा फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। एंजाइम क्या है, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज मतलब यहाँ पे म्यूटेशन की प्रक्रिया, चेंजेज आ रहा है, तो यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप लॉस हो रहा है और एक फास्फेट ग्रुप लॉस होकर ये बना रहा है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन ये कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा मैंने प्रोसेस बताया था, ATP जनरेशन का प्रोसेस हमने बताया था। अब ATP जनरेशन के बाद जो है आइसोमेराइजेशन की प्रक्रिया होगी, मतलब 7वां जो स्टेप होगा वो आइसोमेराइजेशन। एक बार फिर आइसोमेराइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। तो आइसोमेराइजेशन की प्रक्रिया में क्या होगा, 3-फास्फेट जो होगा वो 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई एनर्जी का कंजप्शन नहीं हुआ है। तो अब क्या है, ये आइसोमेरिज्म है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आइसोमेरेज भी लिख सकते हैं या म्यूटेज भी लिख सकते हैं। फिर से एक बार म्यूटेज लिख दें और ये कन्वर्ट हो गया, मतलब 3। तो तीसरे नंबर वाले कार्बन पे ये फास्फेट ग्रुप जुड़ा था, वो कन्वर्ट होके दूसरे वाले नंबर पे आ गया, मतलब ये आइसोमेरिज्म की प्रक्रिया के दौरान वो अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर लिया। तो 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब अगले स्टेप में हम चलेंगे। 8वां स्टेप है आपका डिहाइड्रेशन, मतलब यहाँ पे वाटर का लॉस होगा, वाटर लॉस होगा इस फास्फोग्लिसरिक एसिड से। तो फास्फेट का लॉस होगा, तो ये यहाँ पे 2-फास्फो हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, देखिए H2O रिप्रेजेंट का कौन सा एंजाइम, इनोलेज एंजाइम। इनोलेज एंजाइम की मदद से ये जो है 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा और फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, क्या आपने देखा, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम इनोलेज, दैट इज द रिलीजिंग टू द 1 molecule of the water and that to the form phosphoenol pyruvic acid, and that अब ये phosphoenol pyruvic acid goes to the another ATP generation, एक बार फिर ATP जनरेशन में जाएगा और ATP जनरेशन के माध्यम से ये कन्वर्जन हो जाएगा पायरुविक एसिड में। तो पायरुविक एसिड, लेकिन अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, पायरुवेट। पायरुविक एसिड बन रहा है तो हमको डायरेक्टली पायरुवेट भी बोलते हैं हम। अगर हम ये पायरुविक एसिड न लिख के पायरुवेट लिख दे तब भी सही है। तो पायरुवेट, और ये एंजाइम है तो इसलिए काइनेज हम लिख दे रहे हैं, पायरुवेट काइनेज, ये ठीक है, यहाँ से निकल रहा है। अब मैंने क्या लिखा है प्रोसेस में, ATP जनरेशन। तो फिर से एक फास्फेट ग्रुप यो यहाँ से फास्फेट है, यहाँ से ये निकलेगा और ये ज्वाइन कर लेगा ADP को,
एडीपी से फॉर्मेशन हो जाएगा एटीपी को, क्योंकि ये 2 मोल है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मोल, 2 एटीपी का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा, एक बार यहाँ फिर से। तो आपने देखा, तो देखिए ये लास्ट में पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड जो है अगले प्रोसेस में, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में जाएगा, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो क्या आपने देखा, द 1 मोल ऑफ द ग्लूकोज विच आर कन्वर्टेड इनटू द 2 मोल ऑफ द पायरुविक एसिड in the successive pattern, that is going into the 9th step. In the 9th step is the phosphorylation, isomerization, cleavage, phosphorylation, once again oxidative dehydrogenation, ATP generation, isomerization, dehydration, and ATP generation once again. On the basis of these processes, the numbers of the chemical reaction is takes place. So first of all, glucose is converted into the glucose 6-phosphate due to the presence of the enzyme hexokinase and to the breakdown up to the ATP into the ADP, which means that the loss of the 1 ATP in this process due to the also present of the magnesium ion. And another one, glucose 6-phosphate goes to the fructose 6-phosphate due to the presence of the phosphoglucoisomerase and the isomerization process, and thirdly, once again to the phosphorylation second process, to the phosphorylation, fructose 6-phosphate goes to the join to the one phosphate in the fructose 1,6-diphosphate. ये प्रिपरेटरी फेज था, 4 स्टेप होते हैं। अब इसके बाद ये क्लीवेज आएगा, क्लीवेज 2 को छोड़ेगा तो यहाँ खत्म हो जाएगा प्रिपरेटरी फेज फास्फोग्लिसरोल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में, और इसके बाद यहाँ से ऑक्सीडेटिव फेज शुरू हो जाएगा। अब ऑक्सीडेटिव फेज में फास्फोग्लिसरोल्डिहाइड जो है ये डिहाइड्रोजनेशन और फास्फोरिलेशन की मदद से या एंजाइम की उपस्थिति में ट्राइएज के एंजाइम की मदद से में एनएडी के माध्यम से 6 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद एटीपी जनरेशन होता है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, एडीपी को ज्वाइन करेगा, एटीपी बनेगा और 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम प्रोसेसेस में जाएंगे तो हम फास्फोग्लिसरोमेटेज एंजाइम की मदद से 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो है फास्फेट ग्रुप लॉस कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे फिर से फास्फोग्लिसरोमेटेज आइसोमेराइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से ये फिर से जो कार्बन एटम्स है वहाँ से फास्फेट ग्रुप जो है रिप्लेस कर रहा है और 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। वंस अगेन the process which are proceeding due to the presence of the enolase enzyme, due to the loss of the water molecule, phosphoenol pyruvic acid, and finally to the phosphoenol pyruvic acid goes into the ATP, once again to the ATP generation and form to the pyruvic acid to the form. So that here to the generation of the ATP is the 10, where 6 is here, 6 ATP, 2 ATP, and once again 2 ATP. Add to 10 ATP. But 2 ATP is here loss, 2 ATP loss, minus कर दीजिए, 8 ATP is found. But if you want to that, we are asked to the question in the examination, how many ATP which are gained, to the only 2. Because the pure ATP is forming during the reaction, through the reaction is the 2 and 2, that is the 4 ATP, and in this reaction is the 2 ATP is the loss, so that 2 ATP is the gain and 2 ATP is the loss, is the gain. And if want to that about to the if there any question in during to the whole the process of the glycolysis, how many ATPs which are evolved, so that we will call to the 10 ATPs. So in this process of the glycolysis, to the 1 glucose is converted into the 2 moles of the pyruvic acid, and that pyruvic acid goes into the under the process of the oxidative decarboxylation, and firstly formed to the acetic acid, and that to the coenzyme is joined to the converted into the acetyl coenzyme, and that acetyl coenzyme goes now into the mitochondria. Of the part of the mitochondria is called to the F1 particle, elementary particles, where are the
Krebs cycle is takes place, that is the numbers of the ATPs evolved during this process, and to the enzyme and coenzyme which are also present into the matrix of the mitochondria. So that is the initiation of the ATP during to the glucose metabolism. So that today's topic is the glycolysis is completed in the 9 steps, and in which to the 1 to 4 to preparatory phase, and the 4 to the 5 to the 9 to the oxidative phase. In between to the 2 ATP is the loss, and to the 10 ATP is the form. But is the if your mind is going to the how many ATP is the pure ATP is the formed into the 4, and to the how many ATP is the gain is the 2 ATP, because the 2 ATP is also used into the consumed in this process. So that to the whole the process of the glycolysis is completed according to the chemical reaction. Metabolism is the sum of the total chemical reactions for the foodstuffs, and that is all. तो आपने देखा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया ये 9 स्टेप में पूरी होती है, और जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया आपका कि इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान हमने ये सारी चीज़ों को प्राप्त किया, ये सारी चीज़ों को देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो एक्चुअल जो फंक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया का वो होगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल भी लंबी साइक्लिक प्रोसेसेस है, जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब इसी के बाद यही पायरुवेट एसिडिक कोएंजाइम में कन्वर्ट होके पहुँचेगा, तो वहाँ पे क्रिस्टी के ऊपर जो F1 पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे ये जो पहुँचेंगे, और वहाँ के मैट्रिक्स में जो एंजाइम और कोएंजाइम उपस्थित होते हैं वहाँ पे वो यूज होंगे और केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, एसिटिल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होके सिट्रिक एसिड 6 मोल्स ऑफ द 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज द सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड जो प्रोडक्ट होगा वो फॉर्म होगा ड्यूरिंग टू द सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को देखा और ये समझा कि किस प्रकार से एटीपी का लॉस और गेन होता है, और जो सक्सेसफुल जो प्रक्रिया होती है वो कैसे चलती है, किस प्रकार से एंजाइम्स का वहाँ पे रोल है। आपको एक बात बताएं यहाँ पे, और आप ये समझने का प्रयास किए, जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टू द व्हाट इज द एंजाइम इज यूज इन एज अ नेम। जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जैसे हमने 9 स्टेप यहाँ बताए, और 9 स्टेप को आप समझने का प्रयास करेंगे तो उसी प्रकार से ही, जैसे फास्फोरिलेशन लिखा है तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज हुआ, आइसोमेराइजेशन है तो आइसोमेरेज एंजाइम हो गया। यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एक नाम आता है एल्डोलेज या इनोलेज का, उसके बाद जो है डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया डिहाइड्रोजिनेशन, अगर हम आगे बढ़ेंगे कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो इसी प्रकार से एंजाइम्स का जो है यहाँ पे नाम लिखा जाता है और यूज किया जाता है। तो आप आज के चैप्टर में इतना ही, अगले चैप्टर में हम क्रेब्स साइकिल को देखेंगे और समझेंगे। तो अगर आपको कोई यहाँ पे समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई समस्या जो है लिखें, और उसके बाद जो है अगर तो हम उसको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से आज के टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हुए हम आशा करते हैं कि आपको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो समझ में आया होगा, और अगले टॉपिक के लिए आप तैयार रहें। हम उसको जो है नए एक अच्छे तरीके से आपको क्रेब्स साइकिल को समझाएंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद, थैंक यू।